Okay. So this is Principles of Hospital Management, MHA 303. This time we have a combination of two subjects, which is first is Principle of Hospital Management and others is Hospital Operations. Okay. So we try to first complete this subject and then we would have a hospital operations. So first topic is related to a concept of healthcare industry and the changing character. So which will include like what is the change that you see in the healthcare industry, which you couldn't see or which you didn't see earlier, or you can say what is the trend, like what are the changes, what are the new things that is coming up in healthcare industry. Then we will also talk about how these, multi-speciality hospital functions, like what are the important functions that you run in a hospital from the perspective of management. So for understanding the hospital management, first you need to understand what is management, what are the functions of management, how does management works, okay? Then you will also talk about the activities for effective hospital functioning. So once you will understand how does a hospital functions, how does a hospital work, then you will understand that how effectively we can, run a hospital. What are the important activities? What are important tips? What are the important taps that you need to understand in order to run a hospital smoothly? Okay. Then we will also talk about duties and responsibilities of hospital managers. कि आपके हॉस्पिटल के अंदर जब आप मैनेजमेंट लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप लोगों की क्या ड्यूटीज और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जिस पर आप काम करेंगे और उसको हम कैसे मैनेज करेंगे. अब जब आपके ऊपर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, देन आफ्टर दैट आपके अंदर यानी कि आपके जो जो आप जब मैनेजमेंट में आ जाओगे, जब आप मैनेजर बन जाओगे, व्हेन यू विल बिकम अ हॉस्पिटल मैनेजर, then how or what important factors that you need to have in order to be a good manager. So you will also work on the qualities of effective management. That means अगर आप एक मैनेजर बनने जाओगे तो आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी अच्छी बातें होनी चाहिए जिसकी वजह से आप एक हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को स्मूथली चला पाएंगे. ठीक है. एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन की कोऑर्डिनेशन होता क्या है. ठीक है. उसके बाद हम इंटर और इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन क्या होता है उस पर भी काम करेंगे. लाइक इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द मैनेजमेंट. ठीक है. एनी क्वेश्चन गाइस हियर कॉन्सेप्ट में? मोमिन कोई सवाल? नो मैम. सब समझ में आ गया? मोमिन? यस मैम. अच्छा, मैं पूछ लूं क्वेश्चन? नो मैम. नहीं, तुम पूछो फिर. देखो ये टॉपिक्स हैं, इसको पहले एक बार टेक 2 minutes 3 minutes, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, रीड इट आउट थॉरली. समझने की देखो हम ना कॉन्सेप्चुअली पहले अपने आप को बहुत अच्छा क्लियर करेंगे, फिर टेक्निकली या फिर बुकिश लैंग्वेज पे. टेक 2 minutes 3 minutes, आई डोंट माइंड. इट्स 120 में 124 पे पूछूंगी, कोई बात नहीं.
Guys, everyone is trying to understand, right? I have given 2-3 minutes to you people to just understand these topics because इससे related topics में हम बात करेंगे और आगे questions भी आगे आएंगे इसी पे, ठीक है? Question paper में यहाँ से काफी चीजें आती हैं इन topics से. Okay, guys. मोमिन, Yes, ma'am. स्टडी किया, थोड़ा सा समझा? Yes, ma'am. अब पूछूं थोड़े से कुछ सवाल? Maybe try. Okay, we can try. ठीक है.
And rest all? Shweta? Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, acha, what is the difference between inter and intra departmental? Then inter-department between the one person, within a one person. Hello, ma'am. हाँ, अब बताओ. Ma'am, inter-department between the two person, between the two things. अच्छा. Ma'am, intra in one. इंट्रा इन वन है कैसे? एक्सप्लेन करो हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से. One means what? One department? Hello? Yes, ma'am. One department. तो एक डिपार्टमेंट के विद इन और अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन क्या? Within a same department, ma'am. Okay, so you're right. So inter and intra में difference क्या है कि when we talk about inter department, तो वहां पर हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन है ना, फाइनेंस का, मार्केटिंग से, देन एचआर से. मगर इंटर डिपार्टमेंट आपका विद इन They're different department. करेक्ट. इंट्रा इज विद इन सिंगल. ठीक है. नाउ इन दैट केस माय क्वेश्चन इज कि आप कोऑर्डिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटर में क्या कोऑर्डिनेशन होता होगा, इंट्रा में क्या कोऑर्डिनेशन होता होगा? श्वेता? Yes, ma'am. Can we have coordination between inter and intra? Like what kind of coordination may take place in a hospital when you are having a inter department and also for intra department? Ma'am, 1 second. दीपक भी आप लोगों के बैच से है ना? दीप्ति? हाँ जी मैम. आज ज्वाइन नहीं किया दीपक ने? बाद में फिर पूछता है मैडम ये बताओ वो बताओ, क्लास में नहीं है. गाइस. श्वेता? यस मैम. मैम ये मतलब जो उन्होंने अभी पहले जो थे उन्होंने बोला वो तो समझ में आ गया, बट आप क्या हॉस्पिटल के उससे पूछ रहे हैं? मैं हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ. मम्मी ने बिल्कुल क्लियर बताया कि यस मैम. इंटर डिपार्टमेंटल क्या होता है और इंट्रा डिपार्टमेंटल क्या होता है. इंटर डिपार्टमेंटल की अगर हम बात करें तो हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, और इंट्रा यस मैम. एक डिपार्टमेंट. तो जब एक हम डिपार्टमेंट. coordination की बात कर रहे हैं तो इंट्रा में क्या आपके हिसाब से कोऑर्डिनेशन होता होगा और इंटर में क्या हो सकता होगा? कोई नहीं, थिंक अबाउट इट, नो प्रॉब्लम. यू वांट यू कैन टेक 2 minutes 3 minutes, थिंक अबाउट इट एंड आंसर. ओके मैम.
दीप्ति नहीं कर पा रहे, नहीं रिकॉल हो पा रहा। मैम आपने मुझसे पूछा था ये श्वेता? हाँ श्वेता से सॉरी, एक्चुअली श्वेता दीप्ति दोनों ना एक ही बात करें, कभी कभी हो जाती कंफ्यूजन, और दोनों की आवाज भी एक जैसी है। अच्छा मैम, मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे। अच्छा जो डेफिनेशन बोला वो तो आ गया कि हाँ एक होता है, बट हॉस्पिटल में वो कैसे ट्रांसफर? कोऑर्डिनेशन कैसे? दीप्ति कैसे? दीप्ति आंसर कर, दीप्ति यू वांट आंसर? हाँ मैम। ठीक है। जैसे इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो गया, जो इसका एग्जांपल हो गया, सपोज कोई चीज, सपोज परचेज डिपार्टमेंट है, उनको कुछ कुछ चीज इंडेंट है और वो कुछ खरीदना है, तो उनका आपस में उनके मतलब डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज जो हैं, जो उस डिपार्टमेंट के अंदर है, वो लोग उसको परचेज करने के लिए कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो है इंट्रा डिपार्टमेंटल। इंटर डिपार्टमेंटल है जब परचेज डिपार्टमेंट और एग्जाम्पल हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, या उन्होंने कुछ इंडेंट बोला कि सपोज उन्हें फ्लोर क्लीन करने के लिए या डिसइंफेक्टेंट या कुछ चाहिए, तो वो उन्होंने परचेज डिपार्टमेंट से बात करी, फिर वो लोग वहां से अपना इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से लेके इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करके उन तक पहुंचाएंगे। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल है और वो इंट्रा डिपार्टमेंटल। ओके, मैं इसको थोड़ा और क्लियर करती हूँ, ठीक है। नैन्सी यू वांट टू ऐड? नैन्सी, नैन्सी आर यू अटेंडिंग माय क्लास और खाली ज्वाइन करके चले गए? यस मैम, मैं यही हूँ। तो आप कुछ ऐड करना चाहोगे? Ma'am, there should not be a communication gap if there is intra-department or inter-department coordination. There should not be communication gap. हर चीज अगर किसी point of decision पे पहुंचना है तो inter-department में सारी चीज पहले communicate होनी चाहिए ताकि coordination अच्छे से हो। Which is fine, पर मेरा क्वेश्चन नैन्सी ये नहीं था ना, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दो हॉस्पिटल से जिसमें आपको लगे कि इंटर डिपार्टमेंटल क्या हुआ और इंट्रा डिपार्टमेंटल क्या हुआ। इंटर मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से है ना, और इंट्रा मतलब एक डिपार्टमेंट में है ना। मैम वो तो वैसे हो सकता है, जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, नर्सिंग डिपार्टमेंट है और एचआर डिपार्टमेंट है, जैसे रोस्टर्स मैनेज करने होते हैं इन हॉस्पिटल ऑफ नर्सिंग डिपार्टमेंट, तो उनके बीच में मतलब कम्युनिकेशन वगैरह होता है। रोस्टर्स जो एंड में आके सबमिट होते हैं वो एचआर डिपार्टमेंट में ही आके सबमिट होते हैं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये आपका इंट्रा हुआ, इंटर हुआ? मैम इंटर डिपार्टमेंट। ये इंटर हुआ। इंटर मतलब नर्सिंग डिपार्टमेंट और एचआर का, ऐसा बोल? यस मैम। ओके, और अगर इंट्रा की बात करें विद इन डिपार्टमेंट तो मैम विद इन डिपार्टमेंट एचआर में ही ले सकते हैं। जैसे एचआर में बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, जैसे उनको डिस्कस करने के लिए कोई भी जैसे ले सकते हैं एग्जांपल विद इन एचआर और एचआर एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट एग्जांपल। नैन्सी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। हॉस्पिटल में देखो, आपके एचआर के अंदर आपको जैसे हॉस्पिटल ग्रो कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं आपको दो डिपार्टमेंट्स का एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने हॉस्पिटल को ग्रो करना है, राइट? ग्रो करना है, सो दैट मीन्स आपका फाइनेंशियल भी आपका अपग्रेड होगा, आपकी लोकेशन हो सकता है और एड अप हो, या फिर उसी विद इन लोकेशन हम और एक्सपैंड कर रहे हो, है ना। तो हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, हमको उसमें चीजें भी इंडेंट करनी होंगी, मतलब परचेज करनी होंगी, है ना। फाइनेंस से आपका फाइनेंस का फ्लो भी जाएगा, करेक्ट। एंड अकॉर्डिंगली अब जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नए नए रिक्रूटमेंट्स होंगे, और ऊपर से जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, प्रॉब्लम हो सकता है हम लोग कुछ न्यू सर्जरीज या फिर कोई न्यू ऑपरेशन या कोई न्यू प्रोसीजर्स को अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट कर रहे हो।
सो उसके अकॉर्डिंग अगेन हमें पॉलिसीज पे भी काम करना पड़ेगा, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस और भी ज्यादा उस पे चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज पहले के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकता है छोटे हॉस्पिटल के हिसाब से बने थे, अब जो है वो बड़े हॉस्पिटल के हिसाब से बनने लगे। तो दैट मीन्स अगर HR, फाइनेंस, आपका परचेज, आपका एडमिन, देन आपके नर्सिंग, इन सब के साथ जब कोऑर्डिनेशन हो रहा है दैट इज योर इंटर डिपार्टमेंट। और अगर आपका HR विद इन डिपार्टमेंट अपने आप आपस में डिस्कस कर रहा है कि भाई अब हमें ये चीज नहीं आ रही है तो हमें ये चीज पे कैसे काम करना है, फिर हमें कैसे स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, कैसे रिक्रूटमेंट करनी होगी, कैसे हम लोगों को अपने सिलेक्शन प्रोसीजर्स रखने होंगे, कहाँ से हमारा स्टाफ आएगा, किस तरह की सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करेंगे, तो वो जो आपका डिस्कशन हो गया विद इन वन डिपार्टमेंट, दैट इज योर इंट्रा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। क्लियर हुआ? दीप्ति क्लियर? Momin clear? Yes, ma'am. Dipti, you there? Are you speaking, Dipti? If you're speaking on mute, then unmute and speak. Okay. Shweta, I think facing net issue probably because क्लास में भी हुआ था। ठीक है, तो इस तरह अब देखो हमने टॉपिक तो देख लिया, हमें टॉपिक का मीनिंग भी समझ में आ गया, राइट? बट टॉपिक के मीनिंग के साथ साथ हमें उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जाना है, बिकॉज जब आप एग्जाम में परस्यू करोगे तो योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू टू गो फॉर MCQs इन केस you'll be having MCQs in your paper. ठीक है? हाय डॉक्टर सिंह, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैम, जी मैम ठीक हूँ मैम। ठीक है, अच्छा तो हम जो आज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है जी 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 मैम। चलो, ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक्स नाउ एंड Dr. Singh, can you see my screen? Okay, so before we start principles of hospital management, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर भी आपको मैनेज ही करना है, सो विल हैव टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट कैसे काम करती है, क्या उसके इफेक्टिव पॉइंट्स होंगे, ये सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टार्ट्स विद व्हाट इज मैनेजमेंट, होता क्या है मैनेजमेंट। देखो हमको मालूम है कि मैनेजमेंट जो है हमें हमारे हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे हमें काम आता है। सो हमारी जब हम मैनेज करते हैं अपने आप को तो हमारी लाइफ जो है थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ऑर्गेनाइज हो जाती है इसका मतलब हमारे पास अपने ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, हम उसको मीट आउट करते हैं, धीरे 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 करके उसके लिए स्टेप्स बनाते हैं। सो अगर हम ओवरऑल बात करें डेफिनेशन के फॉर्म में या फिर मीनिंग के फॉर्म में, मैनेजमेंट जो है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसके अंदर हम फंक्शंस को चलाते हैं, यानी कि फंक्शंस के हिसाब से काम करते हैं। एंड फंक्शंस में आ जाता है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ताकि ये जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, ये जो मेरे फंक्शंस हैं, ये अप्लाई हो सके हमारे हर एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट में, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, ह्यूमन हो, ताकि हम अपने जो गोल्स हैं उसको मीट कर सके। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, कंपनी के गोल्स, हॉस्पिटल के गोल्स जो भी हमारे बने हुए हैं, जो हमने बनाए हैं, हम उसको मीट कर सके। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स relating to the functions of planning, organizing, staffing, directing, and controlling, and the application of these principles in harnessing physical, financial, human, and information resources effectively and efficiently to achieve organizational goals. ये मीनिंग यहाँ पे सबको क्लियर है? एक बार पढ़ो दोबारा से, रीड इट everyone.
or anybody would like to read loudly? एग्जाम में आएगा ये, एग्जाम में घूम फिर के इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस बनते हैं. Nancy, would you like to read these 2 lines? Yeah, sure, ma'am. For everyone. Ma'am, from management is essential or management is a set of principles? Management is a set of principles relating to the functions of planning, organizing, staffing, directing, and controlling, and the application of these principles in harnessing physical, financial, human, and informational resources efficiently and effectively to achieve organizational goals. Clear? Momin, clear है? क्या बोल रहे हैं? देखो, हमें मैनेजमेंट में क्या करना होता है. मैनेजमेंट इन्हीं फंक्शंस को यानी कि प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्शन लेके, उसको फिर कंट्रोल करके, जब इन स्टेप्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इन स्टेप्स को या इन फंक्शंस को हम इस तरह से मैनेज करते हैं ताकि हमारा जो मोटा मोटा हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो मीट हो सके और हम उसके लिए अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सके. इफेक्टिवली यूज करेंगे तभी तो हमारे गोल्स मीट आउट होंगे. अब जैसे मैंने सोचा हुआ है कि अगर 5 करोड़ में एक बिल्डिंग तैयार करनी है तो उसके लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा, फिर मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, फिर मुझे इसके लिए डायरेक्शन देनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा. तो ये सारे फंक्शंस हम मीट आउट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करते हुए. और मेरा जो गोल है वो क्या है, बिल्डिंग बनाना. ठीक है, 5 करोड़ के अंडर एक बिल्डिंग तैयार कर देना. ठीक है, तो वो मेरा एक गोल हो जाएगा. तो इसी तरह से मैनेजमेंट में भी, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो या कोई भी नॉर्मल कोई अदर ऑर्गेनाइजेशंस ले लो, चाहे बैंक ले लो, चाहे आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लो, चाहे आपकी कोई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन ले लो, चाहे आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले लो, सारी जगह पर आपको मैनेज करने के लिए इन फंक्शंस के थ्रू गो थ्रू करना पड़ता है ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल मीट हो सके. ठीक है, ठीक है गाइस. अच्छा, ये कुछ डेफिनेशंस हैं मॉस्ले की है. मैनेजमेंट एज अ वर्किंग विद ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय परफॉर्मिंग द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन. फिर उसके बाद एक आपके पास FW टेलर की भी आती है जो बोलता है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. उसके बाद एक मून्स की जो आपकी डेफिनेशन है वो बोलती है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. इट्स एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन परफॉर्म एंड इंडिविजुअल्स and can cooperate towards attainment of group goals. Okay, देखो different management thinkers रहे हैं तो different management definitions मिलेंगी, लेकिन आप देखोगे more or less definition ना objectives के आसपास ही घूमती है. मतलब कि objective को meet करने के लिए इन functions को perform करते हुए कि planning, organizing, आपका staffing, ये सब जो है meet out करेंगे. एक ऊंस की क्या डेफिनेशन थी? ऊंस ने बोला कि इन सारी चीजों के साथ साथ आपको ये एक आर्ट है, बेसिकली ये एक कला है जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको लोगों से और लोगों के साथ काम करवाना, ये एक आपकी मैनेजमेंट है. ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस तरह का आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है आपके हॉस्पिटल में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें लोग खुद ही इतने मोटिवेट हों कि अपनी एक्टिविटीज, अपने काम को वो इंडिविजुअली इस तरह से मीट आउट करें कि आपके ग्रुप का यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो मीट आउट हो जाए. अब एग्जांपल हम बात करें, जैसे नर्सिंग डिपार्टमेंट है. नर्सिंग डिपार्टमेंट में सबको पता है कि फाइल मैनेजमेंट होना है, इतने बजे आर देना है, इस तरह से रोस्टर्स बनने हैं, इस तरह से टाइमिंग होगी. तो ऐसा ही एक तरीका या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उस डिपार्टमेंट का कि उसमें लोगों को अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होती हैं और सब इतने मोटिवेटेड होते हैं कि सबको पता है कि इंडिविजुअली आपका क्या रोल है और उससे आपके डिपार्टमेंट का जो मेन गोल है आपको सर्विंग द पेशेंट, वो कैसे मीट आउट होगा. तो उसने बोला कि मैनेजमेंट एक ऐसी खुद में एक कला है जिसमें आप अपने
लोगों से इस तरह से काम करवाते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अपने आप मीट आउट होगा। और वो करने के लिए आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हो अपने वर्किंग कल्चर में कि लोग खुद ही अपनी एक्टिविटीज को इंडिविजुअली अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर? ऑल क्लियर गाइस? कितने लोग हैं अभी? डॉक्टर सिंह, क्लियर टू यू? डॉक्टर सिंह? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? ठीक है। और मोमिन आपको? मोमिन? यस मैम। क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट स्टाइल्स की, कि मैनेजमेंट के स्टाइल्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस तरह की लीडरशिप होती है विच यू विल बी वर्किंग ऑन। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स दैट यू विल सी इन टर्म्स ऑफ रनिंग अ मैनेजमेंट। कि एक मैनेजमेंट को रन करने के लिए जो आपके तरीके हैं, स्टाइल्स हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर हमारे डिफरेंट एनालिस्ट जिन्होंने स्टाइल्स को एनालाइज किया, मैनेजमेंट के स्टाइल्स को, उन्होंने देखा कि काफी टाइप की लीडरशिप होती है, काफी तरह के स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप रहती है, और किसी को भी हम ये नहीं कह सकते ये ही बेस्ट स्टाइल है। ठीक है, अब किसी पर्सन को कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप सूट करता है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड वर्क। कई बार क्या होता है कि आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हमें, या उस पर्टिकुलर स्टेज पे, जैसे शुरू में फॉर एग्जांपल अगर आपको एक डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए बोला गया और आपने देखा कि वहां पर लोग जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं कर रहे, हो सकता है आपको पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप करनी पड़े, मैनेज करनी पड़े, जिसमें आप सीधा सीधा डिसीजन ले लेते हो या सीधा सीधा ऑर्डर्स दे रहे हो, है ना। और हो सकता है बाद में जब आपका डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज हो गया, लोग तरीके से अपने काम वाम को ठीक से करने, उसके बाद आप हो सकता है लेसेस फेयर पे भी आ जाओ वो हम आगे भी पढ़ेंगे। या फिर आप पीपल जो है वो उसको जो है क्या नाम है, लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, ओके गाइस, हेलो, यस मैम। ओके, मुझे इंटरेक्शन नहीं मिलेगी तो मैं स्टॉप कर दूंगी क्लास, सिंपल। क्लास में सोना नहीं है। कौन सो रहा है? दीप्ति सो रही है? दीप्ति, दीप्ति, दीप्ति एनर्जी डाउन? जी मैम। नहीं मैम। तो आज इंटरेक्शन कम है। ठीक है, इसको इंटरेक्टिव बनाते तभी लर्न होगा फटाफट से, क्योंकि आज मेरा मोटिव ये है कि इसी क्लास में ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है, इसको पढ़ के यही खत्म हो जाएगा। ये एक बार फिर रिवाइज करेंगे, फिर सीधा एग्जाम दे देंगे। ठीक है, ओके दीप्ति? जी मैम। गुड। सो इंटरेक्शन होना चाहिए, बिना इंटरेक्शन के मुझे भी मजा नहीं आएगा फिर। चलो, ओके, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच व्हेन इट कम्स टू ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। इसमें क्या होता है कि an autocratic leader focus less on collecting input from team members and tends to make executive decision that others are expected to follow. So इसमें क्या रहेगा कि जनरली आप ऊपर से नीचे कमांड दे रहे होते हो, नीचे से इनपुट नहीं लेते ज्यादातर। ऑटोक्रेटिक में काइंड ऑफ डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं ना, कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। वहां पे ऑर्डर्स मिलेंगे और आपको ऊपर से नीचे का कम्युनिकेशन मिलेगा, नीचे से ऊपर जाने वाला कम्युनिकेशन नहीं दिखेगा। मीन्स ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, क्योंकि इनिशियली ये जरूरी नहीं है कि परमानेंटली हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यूज कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। हो सकता है सिचुएशन वाइज ये चेंज हो, या फिर पर्सन वाइज ये चेंज हो, या टीम वाइज ये चेंज हो। ठीक है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट की बात करें अगर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता क्या है
ये एक ऐसी टॉप डाउन अप्रोच है जहां पर आपकी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो बॉटम से जो है वो इंफॉर्मेशन या फिर इनपुट या फिर फीडबैक की बात करें तो बहुत कम लिया जाता है, ठीक है। अब इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? फायदे ये हो सकते हैं कि एक तो ये एफिशिएंट होगा इस जब डिसीजन मेकिंग का मामला होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन नहीं ली जा रही, सिंपल क्लियर कट मैनेजमेंट ने देखा कि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो मैनेजमेंट ने उसके बेसिस पे डिसीजन ले लिया, ठीक है। अब डिसीजन इसमें एक चीज और रहेगी कि जितने भी लोग उसमें काम करते हैं डिपार्टमेंट में, उनको अपने रोल बहुत क्लियर रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर से उनके पास ड्यूटीज ये आई हैं, डिफाइंड ड्यूटीज आई हैं जो उनको परफॉर्म करनी है, ठीक है। वो ना उससे ज्यादा कम ना उससे ज्यादा बाहर, ठीक है। तो दैट वेज योर टीम विल बी मोटिवेटेड इनफ, मे बी टू इनिशियल स्टेज। वो लोग को पता रहेगा कि भाई ये मेरी ये चीजें क्लियर रोल्स मेरे पास ऊपर से आया हुआ है और मुझे ये परफॉर्म करना है, मेरी बिल्कुल रोल्स रूल्स आपके और आपका ड्यूटीज आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल क्लियर कट रहता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ऊपर से नीचे फ्लो हो रही है इंफॉर्मेशन, या रूल्स फ्लो हो रहे हैं, या रोल्स फ्लो हो रहे हैं, या ड्यूटीज फ्लो हो रही है, नीचे वाले लोग जो एक्चुअली जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना इनपुट नहीं देंगे, उनका अपनी कोई आवाज नहीं रहेगी और किसी तरह की रूम फॉर मेंटरशिप और प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी एक ऊपर से डिफाइन चीजें आ रही है, मुझे वो करना है और मैं करके चला जाऊंगा, ठीक है। उससे ज्यादा वो कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या अपने इनपुट्स देना एक्चुअल ग्राउंड, क्योंकि जो अप्रोच बना के दे रहा है उसने नहीं करना, पर जिसने करना है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने दिया एक नर्स को कि आपने 2 पेशेंट हैंडल कर रहे हैं, लेकिन नर्स को वहां पे हैंडल करते समझ में आ रहा है कि आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग 3 पेशेंट्स, पर वो 3 पेशेंट नहीं हैंडल करेगी। शी विल सिंपली से कि मेरे को 2 का बोला गया, मैं आराम से हैंडल कर रही हूं, हैप्पी विद इट, सिंपल। सो ये इसका एडवांटेज ना हो कि ये डिसएडवांटेज भी बन जाएगा, ठीक है। क्लियर गाइस? यस मैम। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। मैम एक क्वेश्चन है। आप पूछो। मैम जब नीचे से मैम बॉटम से फीडबैक नहीं दिया जाएगा तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? तब क्या होगा? मैम डिसीजन मेकिंग कैसे सक्सेसफुल होगा? हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ ना कि वो हो सकता है फीडबैक का मतलब ये है कि फीडबैक एज इन वॉट एवर कमांड यू आर गेटिंग फ्रॉम टॉप फ्रॉम योर मैनेजमेंट। जैसे अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट से आया ये कि भाई ये रूल है और आपको ये इतना इतना काम करके देना है, ठीक है। और अगर वो फीडबैक उनसे नहीं मांगते कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा या तुम्हारा, अब यही तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के डिसएडवांटेज है ना कि अगर आप फीडबैक नहीं लेते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग कितना इफेक्टिव है वो कैसे पता चलेगा, आप कैसे इवैल्यूएट करोगे। लेकिन उस लीडरशिप स्टाइल में ऐसा कोई अप्रोच ही नहीं है ना, ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। Who will read for me? Dipti, can you read this for me? Sure, ma'am. Transactional leadership is defined by control, organization, and short-term planning. Leaders who adopt this style rely on a system of rewards and punishment to motivate their followers. As you can see, there are many similarities between transactional leadership and autocratic leadership. The main difference is that transactional leadership, as the name implies, involves a clear exchange between the leader and the team members. For instance, in exchange for compliance and high performance, an employee might be rewarded with a promotion. Okay, advantage and disadvantage. Advantages, okay, can be an efficient way to reach short-term goals, clearly defines expected behavior from team members due to system of rewards and punishment,
provides structure and stability. Disadvantages, limits creativity, growth, and initiative, may not be impactful on people who aren't driven by extrinsic motivation, can be discouraging for those who are looking for professional and personal development opportunities. Okay. Who would like to explain now? Before I give you the explanation, anybody would like to explain this? ये मोर और लेस ऑटोक्रेटिक के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, स्लाइट डिफरेंस. मोमेंट, any input from you? मैम मैं ही कर दूंगी एक्सप्लेन. Anybody else would like to explain? ऑटोक्रेटिक के जैसा ही है, छोटा सा. हेलो हाँ जी, मैम मैं ही कर दूंगी एक्सप्लेन. कर दो कोई बात नहीं, आप कर दो. मैम ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें लिबर्टी थोड़ी सी है. लिबर्टी एज इन थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो एक जो उनको चाहिए शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, वो बोल रहे हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और ऐसा नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. और इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि सपोज किसी एम्प्लॉय ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस करा तो उसको एक कोई रिवॉर्ड दिया जा सकता है, जैसे प्रमोशन. तो इसके एडवांटेजेस भी कुछ बताए हैं कि शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के लिए अच्छा है, और स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी अच्छा है. इवन जो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा वो निकाल भी ले रहे हैं सामने से, एक रिवॉर्ड या पनिशमेंट का नाम देके. डिसएडवांटेजेस ये है कि जो इसमें एम्प्लॉय की पर्सनल क्रिएटिविटी होगी वो सब, या ग्रोथ जो भी है वो सब रुक जाएगी. दूसरी चीज, जो लोगों को मतलब एक एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कोई मोटिवेशन की जिनको जरूरत नहीं मिलती है इतना, उनपे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. मतलब एक पर्सनल ग्रोथ रुक जाएगी वहां पे. और जो लोग भी पर्सनल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि ग्रो करने की, वो उन सबके लिए काफी डिस्करेजिंग स्टाइल हो जाएगा, स्टाइल ऑफ लीडरशिप होगा. Excellent, Dipti. Thank you. Very nicely explained. Very good. Good job. Okay. So ट्रांजैक्शनल की अगर हम बात करते हैं, देखो ऑटोक्रेटिक में भी वही है कि डंडा लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके पीछे पड़ जाओ, ये काम ये काम ये काम ये काम, ठीक है. लेकिन ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन में ना बहुत छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जैसे एक नर्सिंग डिपार्टमेंट है वो चल रहा है, और मुझे बीच में दे दिया गया कि सुमन 10 दिन के लिए ये डिपार्टमेंट हैंडल कर दो, क्योंकि लास्ट 20 दिन से हमने ये देखा है कि उस डिपार्टमेंट में काम अच्छे से नहीं हो रहा, ठीक है, इसको स्मूथ करके दे दो. अब मुझे वो 10 दिन के अंदर वो डिपार्टमेंट स्मूथ करके देना है उस मैनेजमेंट को, तो वो 10 डेज के अंदर ना मैं इस तरह से चीजें डिफाइन कर दूंगी कि मैं अपने फटाफट सारे नर्सेस को बुलाया, उनको सारी उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा से क्लियरली डिफाइन करके दी. और उन 10 डेज के अंदर मैंने ये भी बोला, मैंने उनकी सुना उनसे एक बार को, यार तुम कितने बजे काम करते हो, कितना स्ट्रेच करते हो, कितने आवर्स देते हो. लेकिन अब मैंने उनको बहुत क्लियरली बोल दिया कि तुम्हारी जनरली ड्यूटी 8 घंटे की है, मगर अभी लास्ट कुछ टाइम से हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसकी वजह से आपको 10 आवर्स की ड्यूटी करनी पड़ सकती है, और उसके बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, यू विल गेट इंसेंटिव्स.
ओके सो क्या हुआ? ओके सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांजैक्शनल, मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया कि इनिशियली मुझे उस डिपार्टमेंट को स्मूथ डिफाइन करके देना होगा, तो उस केस में मैंने पहले ही ये शर्त रख दी कि आपके 2 आवर्स का एक्स्ट्रा स्ट्रेच है, ठीक है, पर डे, एंड देन इफ यू डू इट फॉर 10 days रेगुलरली यू विल गेट सो एंड सो रिवॉर्ड्स, ठीक है। या मैंने बोला कि हमारे जो है फीडबैक्स जो हमारे डिपार्टमेंट का बहुत खराब है, नाउ आई हैव गिवन दिस कमांड टू ऑल माय नर्सेस दैट यू नो वी हैव टू improvise on the feedbacks from the patients, उसके लिए मुझे ये करना है, आप सबको ये करना है, एंड उसके बदले में आपके टॉप परफॉर्मेंस को ये प्रमोशंस मिलेंगे या ये इस तरह की न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। तो उस इसी तरीके से हमने जैसे जैसे अभी दीप्ति ने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि जो नहीं करेगा उसको ये पनिशमेंट भी मिलेगी। तो एक ट्रांजैक्शनल फॉर्म जिसको बोलते हैं ना, एक चेंज लेके आना, उस टाइम पर जो आपकी लीडरशिप फॉलो होती है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ठीक है। इसके यही एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। फायदे क्या रहेंगे? ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म गोल है, फटाफट से मीट आउट करना है, मीट हो भी जाता है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बहुत क्लियरली एक्सप्लेन होती है कि भाई आपसे ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, और उसमें आपको आपका स्ट्रक्चर भी प्रॉपरली डिफाइन होता है, ठीक है। जहां तक हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि अगेन मैंने जैसे हमने ऑटोक्रेटिक में बात करी थी कि लोगों को अपना फीडबैक या अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए परमिशन उसमें नहीं होती, या वहां पे उस टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो डेफिनेटली उस चीज में लिमिटेशन आ जाती है। इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा लोगों पर, क्योंकि लोग मोटिवेटेड नहीं भी रहेंगे। दूसरा, डिस्करेजिंग भी रह सकता है उन लोगों को जिन लोगों को लगता है कि यार मुझे आगे मतलब आई हैव टू गिव माई ओपिनियन, आई हैव टू गिव माई आइडियाज। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बार होता है इनफैक्ट ऐसा, लोगों को लगता है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, लेकिन एज पर माय एजुकेशन, एज पर माय एक्सपीरियंस, मैं एक 2 स्टेप ऊपर की पोजीशन पे मुझे होना चाहिए था। तो मैं अगर वो चीज अपने लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ या फोकस कर रही हूँ, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में नहीं मिलेंगी। रीजन उसके ये भी है क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म भी रहता है, ठीक है। वो एक हमें एक ट्रांजैक्शन फॉर्म में बात करें, हम चेंज के फॉर्म में बात करें कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक डिपार्टमेंट को ले जाना है, या एम्प्लॉय को ले जाना है, या मुझे कंपनी को ले जाना है, या मुझे हॉस्पिटल को ले जाना है, तब मैं एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप को यूज करूंगी, ठीक है। दैट्स अ फॉर्म ऑफ लीडरशिप दैट आई विल बी फॉलोइंग in order to implement the new rules, regulations or transaction or a change in the hospital. ठीक है, clear to you guys? Clear? Yes ma'am. Okay, good. अब लिख लोगे ना एग्जाम में आएगा तो। चलो नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेटिक कौन पढ़ के दिखा? कौन पढ़ेगा ब्यूरोक्रेटिक? इतना टाइम रुकेंगे ना तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे। कौन पढ़ेगा ब्यूरोक्रेटिक? डॉक्टर सिंह? Okay, ma'am, I will read. Okay, please read. Okay. Bureaucratic leadership relies on a clear chain of command, strict regulations, and confirmation by its followers. As the name implies, this is a leadership style that's commonly found in government entities as well as military and public organization. Now, advantages: stable in terms of job security and outcomes, removes favoritism from the equation, very clear roles, responsibilities, and expectations, a highly visible set of processes and regulations,
disadvantages: inefficient since everything has to go through a chain of command, doesn't encourage an individual's personal or professional growth, stifles creativity, innovation, and free thinking, doesn't foster collaboration or relationship building within teams, can make it difficult to respond to change. Very good. Thank you. Red. Okay. ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? तो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का एक और भी स्ट्रिक्ट वर्जन है, ठीक है? वहां पर क्या था, हमारे को डिफाइन क्लियर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी जाती थी। यहाँ पर आपके ऊपर फोर्सफुली इसको डाला जाता है ताकि उन रेगुलेशंस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ठीक है? इसमें आपको कोई भी गैप अलाउ नहीं होता, ठीक है? अब स्ट्रिक्टनेस है तो ऑब्वियसली एडवांटेजेस भी रहेंगे। क्या एडवांटेजेस रहेंगे कि आपको बहुत क्लियर रूल्स हैं, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई फेवरेटिज्म नहीं मिलेगा कि इस चीज को, क्योंकि जब हमारा सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ पेपर पे क्लियरली डिफाइंड है, तो किसी तरह का कोई फेवरेटिज्म का स्कोप नहीं बैठेगा, ठीक है? जॉब सिक्योरिटी स्टेबल रहेगी, आउटकम बिल्कुल स्टेबल रहेगा कि अगर आपका ये परफॉर्मेंस आया तो आपको ये मिला, आपका ये हुआ तो ये मिला, ठीक है? वरना ये नहीं मिला। डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली एक तो क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पूरा स्ट्रक्चर पहले से डिफाइंड है, तो चेन ऑफ कमांड हमेशा से फॉलो होगी। मतलब अगर एक लोअर लेवल के पर्सन को फ्रॉम लोअर मैनेजमेंट हैज टू कम्युनिकेट और हैज टू स्पीक टू somebody from very top management, then in that case he has to follow the chains, पहले A से B, B से C, C से D, ऐसे करके ऊपर इंफॉर्मेशन जाएगी, तो ऐसे जाने में फिल्ट्रेशन भी हो जाती है कई बार, कम्युनिकेशन का। उसके बाद ऑब्वियसली लोग मोटिवेटेड नहीं रहते, क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स होते हैं और आपको पता होता है कि इस चीज को मीट करने के लिए और यहाँ इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए मुझे इतने साल लगाने ही पड़ेंगे, उतनी ही स्ट्रिक्टनेस के साथ, ठीक है? ऑब्वियसली जब आपका सब कुछ इतना स्ट्रिक्ट होता है, इतना पेपर डॉक्यूमेंटेड हो जाता है, तो क्रिएटिविटी की जगह नहीं बचती। रिलेशनशिप लोगों में, आपस में, डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो पाते, और अगर किसी तरह का कोई चेंज इंप्लीमेंट करना है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, और इट इज समटाइम नेक्स्ट टू फिजिबिलिटी, नेक्स्ट आई मीन इम्पॉसिबल लेवल की बात करो फिर अगर कोई चेंज देखे, ठीक है? वो हो जाता है हमारा ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ऑल्दो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप अब एग्जिस्ट नहीं करती पूरी तरीके से, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम लोग मिलिट्री की बात कर रहे हैं, या आपका मिलिट्री हो गया, और दूसरा ये क्या रहता है, व्हाट डू यू कॉल दैट, आपका ये कस्टम है, कस्टम डिपार्टमेंट है, मिलिट्री है, यहाँ पर आपको ये इस तरह के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उनके बिना, क्योंकि वो लोग बहुत क्लियरली डिफाइन करके रखते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अपने काम को, अपने पॉलिसीज को, अपने प्रोसीजर्स को, ठीक है? अब स्ट्रिक्टनेस का मतलब यही नहीं कि एनफोर्स किया गया है तो वो फीजिबल नहीं है, रियलिस्टिक एनफोर्समेंट होता है, ठीक है? आपको अगर किसी पर्टिकुलर मिलिट्री में जाना है तो आपके पास एक रियलिस्टिक प्रोसीजर है कि भैया आपको मेडिकल लेवल पे ये चीजें मीट आउट करनी है, वरना आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ सकते, आप उसके एग्जाम्स नहीं क्लियर कर सकते। सो दैट मीन्स इट्स अ some sort of bureaucracy you will definitely find, although in the multinationals, in the companies, in the hospitals, you may not still find the bureaucracy. Okay, clear guys? समझ आया या नहीं आया? But sometimes I feel I'm talking to machine, my laptop. ठीक है? So let me not feel that. I want you guys to interact. Next is charismatic leadership. Charismatic leadership जो है, थोड़ी सी सुनने में भी जैसे बात में करिश्मा, करिश्मा किस चीज का नाम था? बाइक का। बाइक का सबको पता है क्या मतलब होता है करिश्मा का? आपका आसपास का ऑरा, आपका आसपास का ऑरा नहीं, आपकी पर्सनालिटी का खुद का ऑरा।
कहते हैं ना कैरिज्मेटिक हाँ वही क्वालिटी है। हाँ हाँ, तो मीन्स बहुत जल्दी वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेती है। इस तरह का लीडर जो अपने स्किल से पटा लेता है लोगों को। और अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूँ, ये मैंने लेमैन एग्जांपल दिया था, बट अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करते हैं तो एक पर्सन जिसके ट्रेड्स ऐसे होते हैं, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छा होता है, पर्सुएट कर पाता है अपनी टीम को, लोगों को, जिसमें एक चार्म रहता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, उसको बोलते हैं कैरिज्मेटिक लीडरशिप। Okay, so charismatic leadership is defined by a leader who uses their communication skills, persuasiveness, and charm to influence others. Charismatic leaders, given their ability to connect with people on a deep level, are especially valuable within organizations that are facing a crisis or are struggling to move forward. Advantages. अब ऑब्वियसली एक आपकी कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, यानी कि आपका जो लीडर है, आपका जो बॉस है, वो इतना इन्फ्लुएंसिंग है, आप लोग को अच्छे से इन्फ्लुएंस करके एक अच्छा काम करवा देता है। ठीक है, तो उसके फायदे क्या होंगे ऐसे लीडरशिप के? काफी इंस्पिरेशनल होंगे, मोटिवेटिंग होंगे, सेंस ऑफ कैमरेडेज और कोलैबोरेशन रहेगा। कोलैबोरेशन, यूनियन कोलैबोरेशन की बात करें या यूनिटी की बात करें, इसका मतलब है कि आप कनेक्टेड रहते हो अपने डिपार्टमेंट के साथ, अपनी टीम के साथ। आपके फॉलोअर्स जो है वो उनको लगेगा कि हाँ हमारी, आपकी जो टीम के फॉलोअर्स हैं उनको लगेगा कि हाँ हमारी बात सुनी जाती है, हमारी भी एक ओपिनियन को कंसिडर किया जाता है ना। तो जब ये सब रहेगा तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट में एक पॉजिटिविटी रहेगी, एक चेंज भी, पॉजिटिव चेंज रहेगा, लोग मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। अब थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? कैन बिकम मोर फोकस ऑन देमसेल्व्स देन देयर पीपल, हैज द पोटेंशियल टू बिकम सेल्फ सर्विंग, फ्रीक्वेंटली व्यूड एज शैलो और डिसइंजीनियस। क्या मतलब हुआ इसका? कैरिज्मेटिक लीडरशिप के भी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं क्या? और अगर हैं तो इसका क्या मतलब है, शैलो का या डिसइंजीनियस का? ऐसी लीडरशिप में कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि मैं आई कैन इन्फ्लुएंस माय टीम वेल, ठीक है, मेरे से लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हो सकता है उस केस में मैं थोड़ा सा सेल्फ ड्रिवन होके अपने हिसाब से सबको इन्फ्लुएंस कर लूं, नॉट एज पर द ऑर्गेनाइजेशन। मैम सेल्फिशनेस दिखा सकते आ सकती है, राइट। सो देयर कैन बी अ स्कोप और देयर कैन बी अ रूम टू सेल्फिशनेस ऑल्सो। और कई बार ऐसा होता है इवन जो आपके, क्योंकि जब अगर आप अपने बॉस की सब बात सुनने लग जाते हो और आप आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, उसको पढ़ते भी नहीं हो, समझते भी नहीं हो, सोचते भी नहीं हो, तो आप उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हो जिस डायरेक्शन में आपका बॉस चलने लगता है। तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू सम सॉर्ट ऑफ shallowness in the whole department, in the whole, मतलब खालीपन, दिमाग से खालीपन, ठीक है, बिकॉज आप इन्फ्लुएंस होके आपने बॉस की ही बात सुनते जा रहे हैं। ठीक है जी, ओके गाइस, शैल वी मूव ऑन? Yes, यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम जो लास्ट पॉइंट था इसका, वो हाँ, शैलोनेस किस चीज के लिए बोली है? डिपार्टमेंट में shallowness in terms of knowledge, in terms of procedures and policies understanding by the teammates. ओके मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, ओके, नाउ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स क्या होते हैं? Transformation leaders create a vision based on identified needs and guide their teams toward that unified goal through inspiration and motivation.
The main difference between transformational leadership and other styles we have recovered so far is that one is focused on changing the system and processes that are not working, unlike transactional leadership or bureaucratic leadership, which don't aim to change the status quo. ये देखो ये लाइन कितनी अच्छी लिखी हुई है. The main difference between transformational leadership and other styles we have covered so far is that one is focused on changing the system and process. जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल की बात कर रहे हैं, यहाँ हम पूरे सिस्टम को या प्रोसेस को चेंज करने की बात करते हैं. लेकिन जो आपकी ट्रांजैक्शनल और ब्यूरोक्रेटिक थी, वहां पे हमारा एम सिस्टम को चेंज करना या प्रोसेस को चेंज करना नहीं है. वहां पे हम लोग एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए बीच में घुसते हैं और एक छोटा सा चेंज ले आते हैं. लेकिन ट्रांसफॉर्म कर देना पूरा पूरा, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का स्टाइल चेंज करना हो, या आपका वर्क कल्चर चेंज करना हो, या आपके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करना हो, तब जब हमें कोई ऐसा चेंज देख के आना होता है वेयर वी हैव टू ट्रांसफॉर्म, दैट सॉर्ट ऑफ लीडरशिप इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ठीक है. अब इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. एडवांटेजेस है मोटिवेटिंग फॉर द टीम, conducive to building strong leadership and encouraging collaboration, give team members autonomy to do their jobs, can lead to more creativity, growth and empathy on teams. Wherein when you talk about disadvantages, may not be the best fit for specific organization, that is bureaucratic, can cause feelings of instability while disrupting the status quo. मतलब status quo means जो आपका current structure है, current जो status है. Lots of pressure on the leader who needs to lead by example. देखो फायदे तो ऑब्वियसली सबको इजीली समझ में आ गए होंगे कि टीम मोटिवेट होती है, क्योंकि आप एक पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हो, तो उसमें आपको पहले ही आपकी टीम को आपको इंस्पायर करके रखना होता है, मोटिवेट करके रखना होता है, यू नो. एक विजन, क्योंकि हमें एक विजन के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर हम अपनी टीम की नीड्स क्या है, फिर उस हिसाब से उनको गाइड करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और फिर किसी तरह का हम चेंज इंप्लीमेंट करते हैं. तो ऑब्वियसली जब ये सारी स्टेजेस पे आप काम करोगे कि आप उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करोगे, देन उनको गाइड करोगे, मोटिवेट करोगे, तो डेफिनेटली आपकी टीम मोटिवेटेड होगी, एक हार्मनी बनी रहेगी, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना रहेगा आपस में लोगों में, क्योंकि सब लोगों को लगेगा कि पूरा डिपार्टमेंट ही चेंज हो रहा है. एवरीबडी इज पार्ट ऑफ इट, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ something new which is happening to the organization. So everybody will feel that I am important to the organization, I am important part of organization, है ना. उस केस में जब हमें लगता है कि हाँ important part है, अब जैसे घर में भी जैसे कुछ अगर कोई इवेंट होता है, जैसे घर में फॉर एग्जांपल कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं. इवन बच्चे भी छोटे छोटे कामों में हेल्प कर रहे होते हैं, राइट, बिकॉज दे ऑल अंडरस्टैंड, दे ऑल आर मोटिवेटेड, हैप्पीली मोटिवेटेड टू डू दी वर्क, बिकॉज उन सबको लगता है कि हमारे घर का फंक्शन है, हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आएंगे. तो ये जो बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है जब आपके अंदर, तो देन यू टेंड टू परफॉर्म बेटर. आपको लोगों को फिर फोर्स नहीं करना पड़ता. तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल की बात करते हैं, तो इस स्टेज पर हम अपने लोगों को इसी तरह से मोटिवेट करके चलते हैं. ऑब्वियसली लोगों को ऑटोनॉमी मिल जाती है अपने अपने जॉब्स करने में. ऑटोनॉमी का मतलब है अपने अपनी जॉब्स, अपना अपना काम. जैसे मैंने अभी आपको एक शादी का इवेंट बताया, फंक्शन का इवेंट बताया, बच्चों को भी पता होता है छोटा छोटा कि हमें फ्लावर्स सजाने हैं, या उनको अपना काम पता होता है, they do it with lot of encouragement, lot of happiness. ऑब्वियसली बच्चों के अंदर भी आपको क्रिएटिविटी मिलेगी. तो ऑब्वियसली जब लोग हैं, जो मेंबर्स हैं आपके टीम के, जो हॉस्पिटल में काम करने वाला आपका स्टाफ है, दे विल आल्सो हैव दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और वो काफी क्रिएटिव हो जाते हैं, और उनको ग्रोथ नजर आती है, एम्पैथी रहती है विद इन टीम्स. एम्पैथी का मतलब है एक दूसरे की सिचुएशन को समझना. ठीक है. देन डिसएडवांटेजेस रह सकते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस पे जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ लीडरशिप चलती है, वहां पर आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप नहीं चल सकती, बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक में लोगों को आदत होती है कि आपका ऊपर से नीचे एक इन्फॉर्मेशन या फिर आपकी कमांड फ्लो कर रही है और उस हिसाब से लोगों को काम करना है. तो वहां ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वाली स्टेज नहीं लेके आ सकते, वहां पे वो सूट नहीं करेगी. देन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कोई चेंज लेके आ रहे हैं स्ट्रक्चर में, पोजीशंस में,
या स्टाइल ऑफ वर्किंग में, या इवन हो सकता है 2 हॉस्पिटल एक साथ मर्ज हो रहे हो, तब आपको ट्रांसफॉर्म करना है। हो सकता है लोग उस चीज को लाइक ना करें, आपके लोगों में वो इंस्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि वो जिस हिसाब से काम कर रहे थे हो सकता है वो उसी में कंफर्टेबल है, एंड दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। इससे आपके लीडर्स पे भी काफी प्रेशर रहता है, जिनको लीड बाय एग्जाम्पल करना होता है। लीड बाय एग्जाम्पल का मतलब है कहती मतलब आप खुद को ऐसा एग्जाम्पल बनाओ कि लोग आपको फॉलो करें उस हिसाब से। तो ऐसा क्रिएट एक्चुअली करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ऑब्वियसली आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, आपके जो टॉप पोजीशंस हैं, उनके ऊपर एक काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट होके चला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में, क्योंकि आपको लोगों को खुशी खुशी उस चेंज का पार्ट बनाना होता है, एंड इट्स नॉट इजी टू मेक एवरीवन हैप्पी। कभी अगर आप देखोगे कि इवन घर में भी अगर कोई फंक्शन है या अगर कोई शादी होती है घर में, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे सभी गेस्ट आके खुश होके, कोई कुछ ना कुछ बोल जाता है, खाना बेकार है, कोई कुछ बोल जाता है या कुछ, तो इट्स नॉट इजी टू मेक एवरीवन हैप्पी, करेक्ट। एंड व्हेन वी सी ट्रांसफॉर्मेशनल, तो आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करना है। इसका मतलब नीचे से लेके ऊपर तक के डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स में और हर लेवल ऑफ एम्प्लॉय को आपको उस नए चेंज का पार्ट बनाना है, तो विच इज नॉट वेरी इजी। ठीक है, क्लियर? यस मैम। मोमेंट क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो कोचिंग लीडरशिप पढ़ो फिर आप मेरे लिए फटाफट से। मैम coaching leadership is a style defined by collaboration, support, and guidance. Coaching leadership are focused on bringing out the best in their teams by guiding them through goals, advantages. Encourage two-way communication and collaboration. Involves lots of disadvantages, constructive feedback. Facilitated the personal and professional development of individuals. Focus on being support, not judgmental. Create opportunity for growth and creating things. Disadvantages. Resources intensive. It require a lot of time and energy. Doesn't always leads to the fastest, most efficient result. May not be ideal choice for high pressure or strictly result driven companies. थैंक यू मोमिन, थैंक यू। ओके, सो कोचिंग लीडरशिप क्या है? कोचिंग लीडरशिप जो है, हम यहाँ बात करते हैं कि जैसे कोच करते करते, मतलब टीच करते करते, समझाते समझाते, गाइड करते करते अपने लोगों को चेंज करना, अपने लोगों को एनकरेज करना, वो हमारी हो जाती है कोचिंग लीडरशिप। जहाँ पे भी आपके मतलब टीम मेंबर कहीं कुछ फंसते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ में नहीं आता, देन दे लुक आउट to their bosses, to their leaders, so that they can clarify on those issues, right? तो इस टाइप की जब लीडरशिप होती है तो उसको बोलते हैं, इस टाइप के जब आपके मैनेजर्स होंगे तो उसको बोलते हैं वो कोच मैनेजर्स या कोचिंग लीडरशिप। ठीक है, इसके फायदे क्या है? ऑब्वियसली क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम आती है तो आपके बॉसेस आपको कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे कोलैबोरेशन है, काफी कंस्ट्रक्टिव, यानी कि अच्छा, जिससे कि कुछ नया आउटपुट निकल के आए, उस तरह का फीडबैक तैयार होता है। पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट रहेगा इंडिविजुअल्स का, लोग काफी सपोर्टिव रहेंगे, जजमेंटल नहीं रहेंगे, काफी ग्रोथ और क्रिएटिव थिंकिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और वहीं पे आपको डिसएडवांटेजेस क्या है? क्योंकि आपको ये रिसोर्स इंटेंसिव है। रिसोर्स इंटेंसिव होने का मतलब है कि लोगों पे फोकस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम एंड एनर्जी लगानी पड़ती है। बहुत ज्यादा कभी कभी फास्टेस्ट तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि लोगों में चेंज, कहते हैं मशीन्स में चेंज लाना बहुत इजी है। सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया, उसका वैसे आउटपुट आ गया, या सॉफ्टवेयर हटाया, आपका वो वाला आउटपुट हट के दूसरा आउटपुट आया, आपने कमांड दी, उसने सिस्टम ने आपको उस तरह से आंसर दिया। लेकिन लोगों में जरूरी नहीं है कि आप एक जैसे कमांड, फॉर एग्जांपल हो सकता है दीप्ति जिस चीज से मोटिवेट हो रही है नैन्सी ना हो, या नैन्सी हो रही है वो दीप्ति ना हो, तो ऑब्वियसली एक कई बार ना बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है लोगों में चेंज, पूरी टीम को चेंज करना या पूरी टीम को मोटिवेट करना। और जब हमारे को काफी प्रेशर या फिर
रिजल्ट ड्रिवन कंपनीज होती हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा आउटपुट पे काम करना पड़ता है, वहां पर हमारे लिए कोचिंग लीडरशिप काम नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पर आपको कुछ ना कुछ एनफोर्स करना ही पड़ता है, जहां पर आपको रिजल्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ठीक है, क्लियर गाइस, ऑल क्लियर, नैंसी ऑल क्लियर? मैम क्लियर। वेरी नाइस, तो नहीं, नैंसी तो नहीं सही पक्का। चलो नैंसी फिर डेमोक्रेटिक पढ़ो फटाफट। Democratic leadership. Democratic leadership, which is also commonly known as participative leadership, is about letting multiple people participate in the decision-making process. This type of leadership can be seen in a wide range of contexts, from businesses to school to governments. Advantages: encourages collaboration, inclusive of a variety of opinions and ways of thinking, leads to higher group of engagement and productivity, can result in more creative solutions. The outcome is supported by the majority. Disadvantages: the minority opinion is overridden. The involvement of multiple people can lead to more communication gaps and confusion, can take a longer time to come to a decision. An unskilled or untrained group can result in more decision making. गुड, वेरी गुड नैंसी। ओके, डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप ऐसी लीडरशिप होती है जहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत हाई होता है, बहुत ही हाई होता है डिसीजन मेकिंग में। मतलब ग्रुप से पूरा फीडबैक्स लिए जाते हैं, उनके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, डिस्कशंस होती हैं। ये आपको मिलेंगी मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल, ये मिलेंगी छोटी छोटी चीजों में। हाँ, बड़े जब चेंजेस लेके आने होते हैं या जब फिर बड़ा कोई पॉलिसी या प्रोसीजर हमें चेंज करना होता है तो टाइम टेकिंग होता है ऑब्वियसली। नीचे से थोड़े फीडबैक्स इकट्ठे करके फिर एक्यूमुलेट करके वो आपका टॉप मैनेजमेंट के पास जाता है। अब इसके फायदे क्या है? कोलैबोरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके रहते हैं, काफी वैरायटी रहेगी आपके पास, ओपिनियंस के डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग मिलेगी, हायर ग्रुप एंगेजमेंट मिलेगा, प्रोडक्टिविटी मिलेगी आपका, क्योंकि लोगों को आप इतना इन्वॉल्व करके चल रहे हो तो लोग काफी उसमें आप उस प्रोडक्टिविटी में आउटपुट देते हैं, मतलब उनका आपको उनका काफी ओपिनियन देखने को मिलेगा, सॉल्यूशंस काफी क्रिएटिव होंगे, सपोर्ट मतलब आपका जो आउटकम है वो ज्यादातर मेजॉरिटी उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि सबके ओपिनियंस को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है। डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी क्या है कि माइनॉरिटी का ओपिनियन जो है ओवररिडन हो जाता है। माइनॉरिटी के जो भी उनके मतलब क्या बोलेंगे इसमें, जो उनकी थॉट्स हैं या उनके जो ओपिनियंस हैं उनको मतलब इंक्लूड नहीं किया जाएगा, या कई बार वो डिस्करेज करते हैं या वो नहीं लाइक करते, फिर वो उनका पार्टिसिपेशन आपको नहीं मिलेगा। देन क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है, कंफ्यूजन भी हो सकती है, टाइम बहुत लगेगा। कई बार अनट्रेन्ड ग्रुप कैन रिजल्ट इन मोर डिसीजन मेकिंग, मतलब अनस्किल्ड लोग क्योंकि मेजोरिटी बना लेंगे, अपना ओपिनियन मेजोरिटी वाला रखेंगे, तो हो सकता है वो लोग स्किल्ड नहीं है उस डिसीजन को देने के लिए, तब भी आपके जो डिसीजंस हैं वो गलत हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट कैन बी वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। Then we have one more, which is collaborative leadership. Collaborative leadership क्या है? इसमें हम अलग अलग फंक्शंस जो है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें, जैसे प्लान आपका फाइनेंस है या आपका HR है, उन सबको एक साथ काम करवाते हैं, एक साथ कोलैबोरेट करवाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इसलिए ये जनरली कब किया जाता है? जब हमारा कोई शेयर्ड गोल्स होता है या टॉप मैनेजमेंट का जो गोल्स है, हमें वो, जैसे अगर हॉस्पिटल का गोल्स है सर्विंग पीपल, सर्विंग पेशेंट्स, तो उसके हिसाब से हर डिपार्टमेंट को उस हिसाब से कोऑर्डिनेट कराना, उस हिसाब से कोलैबोरेट करना, दैट विल बी अ कोलैबोरेटिव सॉर्ट ऑफ लीडरशिप। काफी क्रिएटिव होती है, इसमें वेज ऑफ थिंकिंग काफी मिलेंगी आपको, इनोवेटिव तरीके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज फॉर डाइवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, क्रॉस टीम्स में एक काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मिलेगा,
और लोग आपस में भी ट्रस्ट करेंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? कई बार एम्बिग्यूटी इन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। एम्बिग्यूटी इन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कंफ्यूजन, लोगों को लगे कि यार ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, क्रॉस टीम कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि अब अलग अलग टीम्स जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, तो ऐसा भी मतलब हम मान के चल रहे हैं कि लोगों में पॉजिटिविटी होगी, कनेक्शन होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, लड़ाइयां भी हो सकती है ना। और जिसकी वजह से जो टॉप मैनेजमेंट है, जो लीडर्स हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपके मे बी वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो आपके हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है, उनको भी इस चीज की वजह से स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो दैट कैन बी अ डिसएडवांटेज ऑफ कोलैबोरेटिव लीडरशिप। द लास्ट वी हैव इज लेस स्फीयर लीडरशिप। लेस स्फीयर लीडरशिप क्या होती है? यहाँ पर हम अपनी टीम को डिसीजन लेने की एक फ्रीडम दे देते हैं। मतलब कहते हैं ना, एक लोग मतलब लीडर ये सोचता है कि मेरी टीम काफी कॉम्पिटेंट है, काफी पोटेंशियल है उनमें, और वो काम करने में, डिसीजन लेने में काफी एक्टिव है। While leaders still provide their teams with the resources and tools they need to succeed, they remain largely uninvolved in the day-to-day work. So this is a leadership style you'll commonly find in creative settings such as advertisement agencies, startup, due to its encouragement of independent thinking. Necessary leadership आपको देखो वहां मिलती है जहां पर ना हमें पता है कि हमारी टीम आपस में डिस्कस करके, ब्रेनस्टॉर्म करके वो इतनी केपेबल है, वो सही फैसला लेगी। तो जनरली क्या होता है, लीडर छोड़ देते हैं अपनी टीम को वो काम देके कि आप लोग देख लो क्या बेस्ट है, वो लेके आओ और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, लेस इज फेयर समझ में आ रहा है? मतलब लेस इज फेयर का मतलब है कि आप थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हो। मतलब ढीला छोड़ने का मतलब ये नहीं छोड़ देना, ढीला छोड़ने का मतलब you give full space to your team to think, to discuss and then to come out with the result. ठीक है, इसके फायदे रहेंगे। ऑब्वियसली आपके लोगों को लगेगा कि हम काफी एम्पावर हो गए हैं, लोग हैप्पी रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, इनोवेटिव रहेंगे, फेलियर्स के चांसेस कम होंगे, लोगों में आपस में ट्रस्ट बनेगा, और सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो आपको दिखेगी वहां पे। डिसएडवांटेजेस में क्या रहता है, क्योंकि आप टीम के ऊपर पूरा सब कुछ छोड़ देते हो तो लो प्रोडक्टिविटी आने के चांसेस हैं, आपस में लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कंफ्यूजन होंगी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और इफेक्टिव विद अनस्किल्ड एंड अनमोटिवेटेड। मतलब ये जो है इफेक्टिव नहीं रहेगा ऐसी टीम के लिए जहां पर आपकी टीम ही इतनी स्किल्ड नहीं है, मतलब मोटिवेटेड नहीं है। वहां पर आपको लेस स्फीयर लीडरशिप जो आपकी, अगर आप करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे और वहां पे वो फेल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर गाइस? हेलो, यस मैम। अच्छा गाइस, ब्रेक तो नहीं चाहिए 5-7 मिनट का किसी को? आई मीन इन केस यू नीड बायो ब्रेक और समथिंग लाइक दैट, और शैल वी कंटिन्यू? Continue, ma'am. It's fine. Okay, everyone, Nancy, Momin? यस मैम। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट हमने बात कर ली कि मैनेजमेंट क्या होती है भाई, फंक्शंस को चलाना ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट कर सके। अब जो आपको मैनेजमेंट मिलेगी वो भी आपको 3 तरह की मैनेजमेंट मिलती है। सबसे पहले आपकी लोअर लेवल, उसके बाद मिडिल लेवल और उसके बाद सीनियर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होती है, जहाँ पे आपके फ्रंट लाइन लोग होते हैं काम, फ्रंट लाइन फोरमैन, सेक्शन लीड, सुपरवाइजर्स, टीममेट्स, इस तरह का जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहता है, दैट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। गाइस गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने बात करी थी, जहाँ पे
जहां पर आपको ज्यादातर लो लेवल के लोग मिलेंगे जिनके ऊपर ज्यादातर काम आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, एक्टिविटीज आती हैं, और फीडबैक्स की बात करें या इनपुट देने की बात करें टॉप लेवल को, थोड़ा कम होता है, जहाँ पे डे टू डे सुपरविजन काफी ज्यादा होता है ना। और अगर उनको कोई अपना फीडबैक देना है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो उनको एप्रोप्रिएट चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स हो गए या मैनेजर्स हो गए या HODs हो गए, इस तरह के जो लोग आ जाते हैं वो मिडिल मैनेजमेंट का पार्ट हो जाते हैं, और वो अपने फ्रंट लाइन मैनेजर यानी कि लो लेवल मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके कोई भी जो डिसीजंस है, इंफॉर्मेशन है या कोई इनपुट है, आपके टॉप मैनेजमेंट तक पास करते हैं। ठीक है। और जहां तक हमारे सीनियर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सीनियर मैनेजमेंट में आपके टॉप रोल्स आ गए, जैसे आपके VPs हैं या आपके AVPs हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं या CFOs हैं या CMOs हैं। इस तरह की जो पोजीशंस आ जाती है वो सीनियर मैनेजमेंट में आ जाती हैं। ये लोग जो है सेट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई गोल्स को, स्ट्रेटजीज को, डायरेक्शंस को, जो वो फर्दर आगे नीचे प्रोवाइड करते हैं अपने मिडिल मैनेजमेंट के साथ, और मिडिल मैनेजमेंट से फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट तक वो ट्रांसफर होता है। ठीक है। अच्छा, अब जब आप लोग टॉप मैनेजमेंट का पार्ट बन जाओगे, है ना, तब आप लोग को आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपको एक मैनेजमेंट में फिट होने के लिए, एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है आपको कि आपको चीजें कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विद योर टीम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देयर नीड्स, evaluate their progress and help them to achieve their goals. You will find out कि भाई उनकी क्या needs हैं, उस हिसाब से उसको evaluate करोगे, उस हिसाब से उसको analyze करोगे, फिर उनको धीरे धीरे further आप guide करोगे। Then you have to be positive. आपके पास एक एग्जाम्पल सेट होना करना चाहिए, मतलब आपकी टीम के अंदर जब आप टीम के साथ पॉजिटिव रहोगे अपने इंटरेक्शंस में, तो वो भी आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन वी हैव ट्रेन व्हेन नीडेड। आपको आपकी टीम की नीड्स को एनालाइज करना पड़ेगा, स्किल्स को एनालाइज करना पड़ेगा, और वो चीजें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए जहां पे उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि आप उनको ट्रेन करके उनकी ग्रोथ के लिए हेल्प कर सको। देन वी हैव कोलैबोरेट। जैसे जैसे एज मैनेजर आपको यू शुड फील कंफर्टेबल इन डेलीगेटिंग टास्क। डेलीगेटिंग टास्क मींस कि अगर आपके पास कोई काम आ गया तो आपने नीचे उसको थोड़ा थोड़ा बांट दिया, ठीक है, लेकिन बांटने का मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल छोड़ दिया। आपको अपनी टीम के साथ काम भी करना है उन सारी चीजों को अकॉम्प्लिश करने के लिए, अपनी टीम के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। ठीक है, ये भी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि आपके टीममेट्स आपके साथ काम करेंगे। देन द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज practice. Perhaps the best way to acquire new skills is to practice them in a real life management setting. So gaining on to the job experience in these skills will help you on promotion ladder. Do your best for your team, serve as a leader and treat your team fairly. Means कह रहे हैं कि आप भी प्रैक्टिस करो, अपनी टीम को भी प्रैक्टिस कराओ, so that जैसे जैसे वो अटेन करते जाएंगे स्किल्स को, क्वालिटीज को, वो फर्दर आगे काम करने लगेंगे, फर्दर आगे ग्रोथ मिलेगी उनको और आपको भी। ठीक है, ये आपके कुछ टिप्स बताए गए हैं आपको एक अच्छा मैनेजर होने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो हमने पहले बात करी थी कि मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है, जिसमें सारे फंक्शंस को फॉलो करना अपने गोल्स को मीट करने के लिए या अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। अब उसमें जो आपके फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करें प्लानिंग की, फिर ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जैसे ये वाला डायग्राम देखोगे अगर आप, है ना, आपने देखा होगा कि डायग्राम देखो ऐसे गोल गोल फॉर्म में बन रहा है और ये रुक नहीं रहा। और उसके बाद अगर आप स्टार्स के एंड पॉइंट्स देखोगे तो आप लगेगा कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब जैसे कोई भी चीज आपने प्लान करी, प्लान करने के बाद आपने उसका एक ढांचा तैयार किया, स्ट्रक्चर तैयार किया, ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद उसमें उस स्ट्रक्चर में जैसे पोजीशंस क्रिएट करने के बाद कि ये पोजीशन होगी, इतने लोग होंगे, उसमें फिर आप स्टाफ को ऐड करोगे, स्टाफ करने के बाद उस स्टाफ को डायरेक्शन दोगे कैसे काम करना है, फिर उसके काम को कंट्रोल करोगे, मतलब इवैल्यूएट करोगे। फिर लगेगा कि इवैल्यूएट करने के बाद यार ये चीज में कमी है, ये चीज में नहीं है कमी,
उसको फिर हम मतलब इवेलुएट करेंगे, उसको मापेंगे, और फिर कोई चेंज लाना है तो फिर अपनी प्लानिंग में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि नेक्स्ट जो मतलब अपने जो हमने रूल्स प्रोसीजर्स रेगुलेशंस जो भी बनाए हैं उसमें हमारे को अगर जब गैप दिखता है, कोई अनरियलिस्टिक टारगेट दिखते हैं, तो कंट्रोलिंग जहां से हमने करी थी, जहां से हमने लोगों के परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया था, उसको मेजर करेंगे और फिर हम अपनी प्लानिंग में वापस से उस गैप्स को इम्प्लीमेंट कर देंगे, ताकि हमारा जो हमारे टारगेट्स थे वो मेरे रियलिस्टिक हो, जो हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाई है वो फेवरेबल हो, उससे हमारा पॉजिटिव आउटकम आए। और फिर उस प्लानिंग के हिसाब से हम नए 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 ये पोजीशंस पे काम करने लग जाते हैं। मतलब हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग डायरेक्शन से भी कनेक्टेड है, प्लानिंग आपका स्टाफिंग से भी कनेक्टेड है, प्लानिंग आपकी देन उसके बाद कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग जो है आपकी वो स्टाफिंग से भी कनेक्टेड है, ऑर्गेनाइजिंग से भी कनेक्टेड है, ऑर्गेनाइजिंग आपकी डायरेक्शन और प्लानिंग से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपस में सारे फंक्शंस इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर है गाइस? अब मुझे आप लोगों से एक जो भी हमारे पास टाइम बचा है, सभी लोग पेन और पेपर लेके मुझे इन फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसकी एक कोई हॉस्पिटल की एक कोई एक्टिविटी लेके ये पांचों फंक्शंस कैसे उस पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो तैयार करके भेजोगे। या आप अपने पास आपके अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आप अपनी वर्ड फाइल के अंदर उसको तैयार कर सकते हो। गिव मी अ वन एक्टिविटी और वन एग्जाम्पल, उसको पूरा पांचों फंक्शंस के हिसाब से आप बना के मुझे उसको दिखाओ कि वहां पर आपको कैसे लग रहा है कि आपका ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन गाइस? समझ में आया? यस मैम। सो यू हैव अराउंड 44 है ना, so I'll give you 12 minutes, 12-13 minutes to do it, और एट द एंड हम उसको फिर देखते हैं कि आपने क्या तैयार किया। ठीक है, मैम समझ नहीं आया मैम कैसे? ऐसे एक्टिव देखो, हम 5 फंक्शंस की बात करें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब Yes, कोई हॉस्पिटल की अपने हिसाब से आप एक एक्टिविटी या हॉस्पिटल उठाओ या कोई भी काम उठाओ, कोई भी डिपार्टमेंट उठाओ। देखो, अरे देखो इसके पीछे देखो। ठीक है गाइज, म्यूट कर लो आपके बैक। उसमें ये पांचों फंक्शन कैसे अप्लाई हो रहे हैं, कैसे अप्लाई हो रहा है, कहाँ अप्लाई हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे अप्लाई हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसका आप मुझे एग्जांपल दोगे। मतलब इसकी एक एक्टिविटी अपने पास पॉइंट जॉट डाउन करो और मुझे बताओ कि उसमें प्लानिंग कैसे काम कर रही है, स्टाफिंग कैसे काम कर रहा है, डायरेक्शन कैसे काम कर रही है। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? क्लियर नाउ एवरीवन? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो so you have like 10-12 minutes, 13 minutes, and then we'll discuss.
Ma'am, हाँ जी, हेलो. ma'am, I am ready with my example. I have not written it down, but ठीक है, let's uh, also do it. Okay, let's wait for others to also complete. Okay, okay, Nancy.
Hello. Hello. Guys, you've done it? Hassan, Dipti. Or in case you want, then we can, discuss in the next class. You can, do it at home also. Dipti, what's the status? Yeah, ma'am, it's done. Okay, and I think some more, okay, they have left. Okay, so then in that case, we can discuss in the next class. Like, I mean, you can complete that. Those who have not completed, they can also complete. We'll do it. We'll discuss it in the next class. Okay, guys? Okay, ma'am. Everyone. ठीक है, because उस टाइम पर हम लोग ये फंक्शंस वाला टॉपिक भी कवर करेंगे, so we'll discuss your activities also. Okay? Okay, ma'am. Okay, then time to wind up. We can wind up, right? Okay? Yes, ma'am. All right, then we'll connect in the next class. Thank you everyone for the time.